तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम, first of all, I would like to pay my humble obeisances at the lotus feet of my Guru Pad Padma, Shripad Bhaktivedanta Siddhanta Goswami Guru Maharaj, and unto the lotus feet of Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Padashtotar Shashi Srimad Bhaktivedanta Shri Narayan Goswami Maharaj Ji. At the lotus feet of Nitya Lila Pravishta Shri Srimad Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj Ji and Param Guru Ji, Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Padashtotar Shashi Srimad Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ji. After that, I offer my humble obeisances to the sannyasi written present here, Pujapad Shant Maharaj Ji and Pujapad Bhaktivedanta Padmanabh Maharaj Ji, and all the Vaishnavis present here. Please accept my humble obeisances. So we all have gathered here today for an occasion of, there are multiple occasions actually. First is the inauguration of this house, and they also have the birthday of their Thakurji here. So their Gopalji. So we need to understand that we all have come here for these kind of occasions. That okay, we have heard previously that how everyone celebrate birthday of their children in their house. So nicely they celebrate. But for non-devotees, it is a bit weird that, oh, people are celebrating the birthday of Thakurji as well. What is the meaning of that? Why do they do that? Thakurji has no birth. Thakurji is the Supreme Personality of Godhead. And when we understand the meaning of Bhagavan, Supreme Lord, what is the meaning of Bhagavan? Our Guruji, he many times explained that how we need to understand what Bhagavan is, who Bhagavan is. Many times in the temple also we just go, pay obeisances, take some prasad and come back. Even the priest there, they do not know what is the definition of Bhagavan. If you just ask a priest there in the normal temple in India or anywhere in the world, very few only will really give the exact definition of what Bhagavan is. What is the definition of Bhagavan? So we need to understand that Bhagavan, in Hindi, we use this kind of word where we add Van at the end. And what does that mean? Van means the one who possesses. For example, we say Vidyavan. So when we say Vidyavan, then Vidya, Van. Vidya means knowledge. And Van means the one who possesses the knowledge, one who enjoys that knowledge. We say Dhanvan. Dhan means wealth. Van means one who enjoys and possesses that wealth. So, in this way comes Bhagavan, that personality who accepts and who relishes, who possesses, who enjoy Bhag. Now what is Bhag? Can anyone tell here what is Bhag? We devotees must have already heard so many times that Bhag means all kind of opulence. Specifically, there are 6 kind of opulence. Aishwarya, Samagrasya, Veeryasya. Yeah. What is Bhagavan? Definition of Bhagavan? So in the Vishnu Puran, there's this verse which is Aishwarya Sasamatra Sya Shariya Shriya Yana Vayadya Shriva Sanamvarantikindana. Means Aishwarya Samagrasya, the one who completely possesses the following 6 qualities. Aishwarya, all opulence. Samagrasya, Virgasya, all strength. Yashasya, all the faith. Shriya, all the beauty. Jnana, Bhagavan, all the knowledge. And Vairagya, all detachment. Someone who possesses these qualities to the fullest extent, that person is Bhagavan. So,
I think everyone heard that these 6 kind of qualities, one who possess in fullness, in complete, that personality is Bhagwan. We may see that there are so many wealthy people all across the world. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, who are like having most of the portion of the whole wealth of the world. And then, even after that, what is the case? That they just possess a little bit of wealth of this earth planet. And there are so many planets, so many multiple universes are there. And the Supreme Personality of Godhead is the one who possesses all the manifestation, which is inside him, which is outside him, which is under his possession. So in this way we understand that Supreme Personality, who? Bhagavan. So now we are understanding that we are celebrating birthday of that Supreme Personality, who has no birth, who has no death, who is beyond birth and death, who does not come here and take birth like a normal human being as we do. So we need to understand that what is the essence behind this. Why we are celebrating such kind of thing? Is it some kind of sentiment only, or there is really some philosophy behind this? We need to really understand that. So now, Srila Rupa Goswami, he gave a definition of bhakti, because what we do for Krishna, whatever we do for Krishna's happiness, for Krishna's service, it all comes in the category we call as devotional service. And that is what bhakti is called. And Srila Rupa Goswami, he has given us the definition of that bhakti, that what it is. Anya bhilashita shunyam jnana karmadyanavritam anukulyana krishna anushilanam bhaktiruttamam. So here, Srila Rupa Goswami has given this definition telling about the essence, the meaning of bhakti. This definition, there have been in scripture so many definitions of bhakti, but this is the only definition which includes all other definition in itself. So there it is saying, Anya bhilashita shunyam, that we does not, so this Anya bhilashit, this means that one should give up all desires. But Srila Rupa Goswami is saying that this is not the case. People from externally try to think that every spiritual process, all kind of spirituality requires something that you have to just reject, renounce everything. But this is not the case. Bhakti is very subtle. We need to understand that it is not that you have to leave your house, you have to leave all the things that are your material belongings and everything, and you just have to go into the forest and then do some meditation or something like that. No. Anya bhilashita, this ita last, this word ita, Anya bhilashita, it changes the meaning of it completely. How? That it is saying that not you have to renounce everything, not you have to desire anything separately. It is just that you have to renounce that tendency of asking, of praying, of just acquiring things for your selfish motives. Anya bhilashita shunyam. You have to just reduce it to zero. What? Not any kind of desire, but the desire which actually entangles you in this world. But on the other hand, Srila Rupa Goswami parallelly is trying to inculcate that you don't have to just remove everything and go into void. You don't have to go into annihilation. You have to accept something. When you reject something, you have to accept something in parallel. This is the nature of human. This is the nature of jiva. See, we cannot be void. We cannot be like into a blank space. We have to accept something. We are all love beings. For example, if any one of us has been sent to an island where there is no person, but there is all kind of opulence. Whatever we require, we are getting there. Whatever, every kind of enjoyment. But there is no person to talk with, to share our success with, to share our feelings with. So how that person will feel? You yourself take your example. If you are kept in such a situation, how you will feel? In few days you will get into depression. All kind of enjoyment is there, but when there is no one to express your love with, to express your feelings with, then what will happen? You will feel some emptiness. Some emptiness will be there, although you are completely filled with your surrounding. So that is the thing that we need to understand, that we are love beings. So we do not need to reach that state where what we are doing, we are just into a void. We have no desire. Oh, I have nothing to do. I have no desire. I don't want anything. This is not the case. So Srila Rupa Goswami here is explaining that we have to desire everything for Krishna. We have to desire, we have to
do all our activities for Krishna. Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, he used to say one statement. He said that the perfection of all our activities is when we just do those activities in the devotional service for Krishna. So this is the perfection of our activities. So in the process of bhakti, they do not encourage us to reach an inactive state. Instead, they encourage us to reach a very active state where we are doing everything making Krishna as the center of our life. Where Krishna, he does not want to be worshipped as the supreme personality of Godhead. He wants to be worshipped as as someone's beloved, someone's son. More putra, more sakha, more pranapati. Krishna is saying that there are so many people all across the world who worship me, considering me as the supreme personality of Godhead. They just do so many opulent things for me. Like, for example, in Vaikuntha, what happens? Narayan is there, and all the devotees will come. They'll perform aarti, something like that. They will do all kind of services, but they are not able to have that kind of relationship with Krishna, with Narayan, as devotees have in Vraj. And this is we hear in an example of Gop Kumar, where there was this sadhak who just performed devotional service and reached Vaikuntha. And there he is thinking in his heart, then, oh, I really want to embrace Narayan. Can I do that? I really want to massage Narayan. Can I do that? No, Lakshmi Devi is not allowing me. Lakshmi Devi is the one who will massage Narayan always. I really want to get into the inner chamber of Narayan all the time whenever I want. No, I cannot do that. So Gop Kumar is feeling some kind of what? Some kind of void, some kind of unhappiness. So what is the case in this? Reaching Vaikuntha also, which is beyond all kind of kuntha, all kind of suffering, all kind of miseries, he still is feeling some kind of emptiness. What is that? He wants something else. And what is that? He wants that oneness. He wants that relationship with the Lord. And then he ultimately reaches to Golok Vrindavan, where he is just keeping his hand on the shoulder of Krishna, walking in the forest. So likewise, we also, Krishna also want this only. More putra, more sakha, more pranapati. Krishna does not want that people all should worship me with the mood of opulence, just giving me lambs and this and that. No. He wants that, like the devotees should serve as Mother Yashoda, as Mata Mor Putra Bhave, Kore Bandhan, Atihin Gyani Kare Lalan Palan. So, here, like a mother, with so much motherly affection, she serves a child. And what that child do? That child stays completely dependent on that mother. In the same way, Krishna wants that kind of love. Although he is supremely independent, he is completely independent, still he becomes dependent on Mother Yashoda. For example, we hear in... So, he just completely becomes dependent on Mother Yashoda. So, in this way, we see that the Supreme Lord, he just gets attracted, get controlled. Who is the Supreme Controller? He gets controlled by the devotees of Vraj. And among them, the best, who is Srimati Radharani. In Chaitanya Charitamrita, it has been written, Govinda Nandini Radha, Govinda Mohini, Govinda Sarvasva Sarva, Kanta Shiromani. Jagat Mohan Krishna Tahar Mohini, Atayeva Samastera Shripara Thakurani. Here it has been written, Govinda Nandini Radha, Govinda Mohini. She is that personality who gives bliss to Govind, who gives Anand, bliss to Govind. Govinda Nandini Radha, Govinda Mohini, and she controls Govind. Govinda Sarvasva Sarva Kanta Shiromani. She is everything of Krishna. So that Supreme Lord who is completely independent, he is dependent on those devotees who have just given their very self to him. Jagat Mohan Krishna Tahar Mohini. Krishna is the one who is just dancing everyone, making everyone dance.
who is controlling everyone. Jagat Mohan Krishna, attracting everyone's mind. Tahar Mohini, and that personality also is getting attracted, getting controlled by Radharani. Ataiva Samastira Shri Parathakurani. And that's why Srimati Radharani is the mistress of Vraj. She is not just the mistress of Vraj, she is the mistress of that Supreme Lord, Shri Krishna also. So here we understand that what bhakti is. Through Srimati Radharani, what kind of love, what kind of devotion one should have, we need to learn that. And through that we are observing that how Krishna also wants that only. He wants to get dependent. He does not want to stay independent. Although he is, but still he becomes dependent and he wants. And he himself says that I just walk behind my devotees and just take the foot dust of those devotees onto my head. So can we imagine this, how that Supreme Lord is asking for such things? What kind of feeling he must be having, what kind of happiness he must be having. And to relish that more, that what Radharani is experiencing, Krishna took the form of Gauranga Mahaprabhu. So the essence that we all discussed this, that how we need to do bhakti. Bhakti is not something very superficial or very ritualistic thing. It is sure that we need to undergo some rules and regulations, but Gurudev always used to say that sadhan bhakti, all the sadhana that we are doing, the goal should always be to have that raganuga bhakti, to have that rupanuga bhakti. And then only our sadhan bhakti will really be called as a sadhan bhakti, otherwise not. So with this, I'll conclude. Vansha kaltarubhyacha kripa sindhubhyacha patitanam pavanabhyo. Many devotees ask me, who is that devotee who do your translation in your Bhagavad Kathas and your house programs and even in Kartik Parikrama? So, who's that devotee? It's Keshav Prabhu. Yeah. We came not in his house, his parents' house, because now he's brahmachari. Okay? His mother, Yogmaya Mataji, she has given the boy the service of Mahaprabhu and Radha Krishna, the preaching of Mahaprabhu. Very learned person. Not only learned in scriptures, very good in singing, best in Mridanga, and very highly qualified. He is IIT gold medalist. IIT gold medalist. We need this kind of more boys to join our mission, to spread the mission of Shri Chaitanya Mahaprabhu. And very soon, he is going to travel overseas for preaching, taking the message of Gurudev and Mahaprabhu all over the world, very soon. So, I am very proud of him. He stayed with me and I know how humble and simple, even though with so many qualities, but he always keep himself very simple and humble. It's very rare to see a brahmachari like him. So, Keshav Prabhu ki. Now, I request Pujya Shant Maharaj ji to speak a few words. Just give mic to Maharaj. So, I request speakers, please maintain 10 minutes, 12 minutes, and then we have so many speakers today. Om Adyanam Timidasya Gyanandaya Salakaya Chakshuramitam प्रोग्राम हुआ था कल ही प्रोग्राम हुआ था ना शाम को Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadguru Bhaktavrinda अब यहाँ सब Hare Krishna पूरा हॉल तो Krishna Krishna 8 बजे Hare Ram Hare Ram Hare Hare. सुबह 6 बजे लैंडिंग हुई है So, रूम में जाकर स्नान करके सीधा ये अफ्रीका से आए I will just start with a story. न्यूयॉर्क का ग्रुप In our devotional life, most of us are, I would say, very like we performing activity lackadaisically. Not, we know Guru Dev is not around, so we can do whatever we want. But then
I want to tell this story that all of you know, but just to buttress what I'm saying. There was once a king, and that king was very powerful. He had a lot of, counselors, and the prime minister was very, very good, very intelligent. So what did the king say to the prime minister one day? Oh, my prime minister, I want to know who God is. And what is God doing? If you can tell me these things. So the prime minister was a little confused. I've never seen God. I don't know what God is doing in essence. So he says, I give you 3 days over the weekend. When you come on Monday, you can tell me, what you have realized. So this prime minister went home and was very confused. Normally he has a 5-year-old boy. At the weekend he'll be playing with the boy. Now, he didn't go out to play with the boy. So the boy comes in. He said, Father, what's happening? Oh, this is a lofty thing. You wouldn't know anything about this. Just go and play. But the boy insisted. Please, Father, just tell me what's happening. And finally, the man said, oh, the king has asked me some questions. And I'm just in all the questions. I don't know how to answer. The boy said, can you tell me, Father? He said, well, the king wants to know who God is. And he wants to know what God is doing. So, how to see God? Actually, he said not who God is, and how to see God. And the boy said, no, don't worry. When you go to the court on Monday, take me with you and tell the king that this question he asked is so simple that his 5-year-old boy can answer the question. So on Monday, he went to the court, and the king asked, oh, my prime minister, have you got the answers to my questions? The prime minister said, yes. The answer to your questions are so simple and very easy. Even my small 5-year-old boy can answer those questions. So he said, okay, bring the boy. He was surprised at it. He said, 5-year-old can answer my questions. He brought the boy. The boy sat down. He said, okay, son, can you tell me, how to see God? The boy said, can you bring me a bowl of milk? He brought him they said, a bowl of milk? What do you want to do with a bowl of milk? He said, no, just bring me a bowl of milk. They brought the bowl of milk, and then the boy asked the king, in this milk, is there any butter in the milk? The king said, yes, there is butter in the milk. So, how do you actually see the butter in the milk? They said, the king said, you have to churn the milk. You have to churn it. So, churning the milk, you get the butter. The boy said, yes. If you want to see God, you have to churn, bhakti. You have to work hard. You have to have sadhana bhakti in your life. You have to do something to see God. So in the same way, as devotees, if we've come to the rightful path, but if we want to see God, whatever Guru Dev is telling us, we have to work very hard
to churn the milk of bhakti so that we get the butter, the cream, that is the prem that will come out of it. If we don't do anything to do that, then our life becomes just like, we are devotees, but we are just like 1 foot outside, 1 foot inside. If we want to plant both foot in, we have to work very hard. If we want to see God, if we want to get what Guru Dev is telling us, that prem, that bliss, we have to work hard. Then number 2, he said, then what is God doing? The boy said, oh, King, you are now a student. You are asking me questions, but I'm sitting on the floor, and you are sitting on your Vyasasan, on your asan. Sorry, not Vyasa, asan. So tell me, how can that be? You can't be sitting there and asking me question, and I'm now the guru. So the king understood. He came down. The boy jumped onto the asan, and he said, "This is what God is doing all the time. He's raising us higher, or he's lowering us. So in the course of our activities, by our karma, we are either being elevated or we are being demoted. But as devotees, we should always think it is due to my sinful activities. That is why I am having trouble. That is why I'm having this, things come on my way. Please, Lord, just give me the opportunity to serve you, even in the mood when all these activities are taking place, all these tribulations are happening. Lord, give me the chance to serve you. In this way, the spiritual world, Krishna says, the kingdom of God is ours. So as devotees, please sacrifice your mood. Some austerities should be there. Austerity not to get material things. Austerity to get the Supreme Lord. Austerity to serve Gurudev. If we do that every day and chant our mantras Gurudev has given us, then there will be some realization in that mantra. There will be Sambandhan Gyan in the mantras. The Sambandhan Gyan Gurudev has given us will be manifested in these mantras. So with this, I yield back to Maharaj Vanchakapatarigya Kripasi Nidhyada Chapati Kanabadu. So, before Padma Maharaj speak in Hindi, I want to welcome all devotees from many countries for this upcoming tour. We are starting day after tomorrow. I didn't plan anything, but just sitting here, I was thinking, meditating. We are starting this tour from April 3rd. The very first day we are going Kurukshetra. And after Kurukshetra we are going where? 3 days in Jagannath Puri on darshans, and then 3 days in Dwarka, then 3 days in Vrindavan, and back to your countries. Very intense, huh? What is the significance? If we see Kurukshetra, Jagannath Puri, and Dwarka. Kurukshetra is a place of meeting after long separation. After long separation, Krishna met Brajvasis at Kurukshetra. And the place where Rath Yatra took place, where gopis, they put Krishna on their heart and they brought Krishna from Kurukshetra back to Braj. And we also going Jagannath Puri, the place of Vipralam, separation.
Actually, Kurukshetra is also a place of meeting, but there was intense separation when they separated. Jagannath Puri is also a place of separation with Pralam, and Dwarka also place of separation where Krishna feeling intense separation. In Jagannath Puri also, Kurukshetra also, but finally we are coming Madhuraina Samapena, ending with sweetness. Vrindavan, the place of union, the place of meeting, where Ras takes place. But Vrindavan is abode of everything in detail and everything in higher limit. Union is intense and separation is also intense. Where? In Braj. If you all come to Kartik Parikrama, you must come to Kartik Parikrama. All of you. We all go to a place called Prem Sarovar. There Man Sarovar, there Kusum Sarovar, then there is Prem Sarovar. Prem Sarovar where Radharani is lying on the lap of Krishna, and only just by hearing, when Radharani is lying on the lap of Krishna, one bumblebee came to touch the lotus feet of Radharani. Considering that this lotus feet is just like a lotus, and I'm here to get the nectar. Seeing that bumblebee approaching the lotus feet of Radharani, Madhumangal came with a stick and chased the bumblebee away. And just said, Madhusudan has gone away. Only by hearing this word, this sentence of that Madhusudan has gone away, means Krishna has gone away. Radharani, who was so close to Krishna, she felt intense separation. This is called separation in meeting. And there is another which is called meeting in separation. These different holy dhams, their great significance, we're going to hear in details when we go there. It all has to do not only just pastime, but the Siddhanta, the Tattva, the place of separation, the place of union. We see in Dwarka, Krishna is Dwarkadish, but there is so much separation there. If you read Brihad Bhagavatamritam, you will understand. He's crying and weeping, Radhe, Radhe, Radhe. Tears coming from his eyes, flows from his eyes. Because somebody asked me a question, why are you going to Dwarka? Did ever Gurudev went to Dwarka? Of course. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, he used to go Dwarka with his devotees. And wonderful Harikatha. Param Gurudev, Shri Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, he used to hold Kartik Parikramas in Dwarka Dham for 15 days. We have account in our Gaudiya magazines. Written by Shri Bhaktivedanta Trikram Goswami Maharaj. He is giving account. Everything that we bought train and then we took bus, all those details, how much expense, everything he is giving. Shri Bhaktivedanta Trikram Goswami Maharaj with Srila Gurudev, under guidance of Param Gurudev, visiting Dwarka. What is the purpose of Gaudiya Vaishnava in Dwarka? To console Krishna, who is feeling so much pangs of separation from Radharani, to make him hear the words of Radharani and the beautiful pastimes of Braj. That's the seva of Gaudiya Vaishnavas. Where gopis went there, and there's Gopi Talab, the Sarovar, the pond of where this tilak, we all apply this tilak, it comes from Dwarka. Not only that, all this dhams as Saptapuri is a moksha. We get mukti, liberation. That's very secondary. But there's a abode with the dham where Krishna is feeling pangs of separation from Radharani. There, people go just for darshan, but Gaudiya Vaishnava goes for some very special purpose, for the service of Krishna. We're going to describe this in detail some other time. And then,
Jagannath Puri, as we all know, Mahaprabhu is feeling separation and Jagannath feeling separation. But finally coming to Braj, the place of Ras Leela, the meeting of Shri Radha Krishna. But also in Braj, there is also intense Vipralam, separation. At Uddhav Kari, Radharani feeling pangs of separation. And along with Krishna at Prem Sarovar, Radharani is feeling separation, even though this so closeness and intense union was there. So Vipralam, separation, plays a very important role. Vipralam, separation is not everything, but it plays a very important role to enhance the pleasure in union. Bina Vipralambena Sambhog Pushtimashnu, Shri Rupa Goswami Pad is saying. So these are some tattvas along with some pastimes we are going to hear in details when we approach all these dhams. I request Pujyapal Bhaktivedanta Bhadna Maharaj, now we will speak in Hindi. English बहुत हो गया, अब थोड़ा हिंदी में भी हो जाए. हरे कृष्ण. गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. हरे कृष्णा सफलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम सर्वप्रथम परमाराध्यम गुरुपाद पद्म जगत गुरु तिल्ला विष्णु विष्णु पद शुद्ध शिष्य भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणारविंदों में अनंत कोटि शतवंदन प्रणाम समर्पित करता हूँ. तत्पश्चात समस्त रूपालक्ष्य गुरु वर्गजन सचिनंदन गौर हरि मंचासीन पूजनीय भक्तिवेदांत सिद्धांति महाराज, पूजनीय भक्तिवेदांत शांत महाराज एवं सभी वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार. हम लोग माया माता वर्मा प्रभु, उनकी बेटी ईशा और नंद के घर में हम आए. और ठाकुर जी का जन्मदिन किसका है? अच्छा, इनके ही ठाकुर जी लड्डू गोपाल के जन्मदिन है. सब लोग बधाई तो इनको वो बधाई हो, जय हो. और ठाकुर जी का वो जन्मदिन भी मना रहे हैं साथ साथ. देखो नहीं होती. हाँ. ऐसे बधाई नहीं होती. अच्छा, कैसे होती है? लाला जन्म सुनाई रे, हाँ. दीदी दे दो बधाई, तब होगी बधाई. देखो, भक्त का परिवार कैसा होता है, ये हम माया माता वर्मा प्रभु के परिवार को देख के कुछ हम समझ सकते हैं. हाँ, ये जरूर है कि भाग्य की भी कुछ बात है. सबके भाग्य में सब चीज नहीं मिल जाता है. पत्नी ठीक से मिल जाए, दामाद ठीक से हो जाए, ये तो भाग्य की बात. फिर भी परिवार को कैसा संस्कार देना है, मतलब जोरदारी से माया माता को और वर्मा प्रभु को तालियां दो. बहुत ही सुंदर तरीके से बेटे को ही दे दिया. कोई नहीं देता आजकल, कोई नहीं देता है. चाहे 4 बेटे भी हो तो चारों चाहिए, कोई नहीं देता. देने का नाम किसी का नहीं है, लेने का तो सबका है. देगा कोई नहीं. तो किसी ने यदि दिया है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है. और ठाकुर जी गीता में यही तो कह रहे, तू 500 2000 दे के क्या करोगे? खुद को ही दे दो, अपना सब कुछ दे दो. सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज. तो अपना छोड़ के सब कुछ मेरे
शरणों में दे दो। तो बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ी तपस्या है। यदि सबके माताएं इस प्रकार से कुछ कुछ दान करें तो धर्म की रक्षा क्यों नहीं होगी बताओ? कलिकाल में भी ये धर्म की रक्षा क्यों नहीं होगी बताओ? कोई देगा ही नहीं, फिर तो गलत लोग ही घुसेंगे ना। फिर गलत लोग ही तो घुसेंगे, फिर पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, फिर गलत लोग ही आएंगे। फिर उसका नतीजा आपको ही भोगना पड़ेगा। श्राद्ध करने के लिए कोई नहीं, शादी करने के लिए कोई नहीं, पैंट पहन के आ रहा है, पी के आ रहा है, गुटखा खा के आ रहा है। कारण कौन है? हम स्वयं है। हम स्वयं उसके कारण है। हम ये कहते बेकार लोग हैं, बेकार चीजें, तो बेकार में जाएगा कौन? कोई नहीं जाता। फिर आप सम्मान दोगे, आप उसकी जो मर्यादा की रक्षा रखोगे, तब बड़े बढ़िया बढ़िया लोग जाएंगे, तब तो होगी। नहीं तो फिर जो कलिकाल का जो प्रभाव है, धीरे धीरे सब गलत लोग आना, गलत चीजें होना, इसका कारण यही है। तो इसीलिए मैं पहले भी समझाता था कि यदि माताएं देश के लिए, सेना के लिए बच्चे को नहीं देते, देश रक्षा हो सकता है? सारे कहेंगे, पत्नियां यदि कहेंगी पति मेरे पास ही रहेंगे, कहीं जाएंगे ही नहीं, तो देश की रक्षा होगा? हाँ जी, बताओ। शांति से बैठ गए यहां जो अभी प्रसाद पा रहे हो, पा सकते हो? हैं? जाके देखो उक्रेन में, रशिया में कभी बिजली नहीं, कभी खाने को नहीं, कभी सर्दी हो रही है। यहां शांति से हम लोग जो बैठ रहे हैं, तो किसी ने तो त्याग की है ना। चाहे माँ ने की, पत्नी ने की, पिता ने की है, तब जाके हम यहां शांति से बैठ। ठीक है, वैसे ही मठ, मंदिर, धर्म, सनातन जो धर्म है, इसकी भी रक्षा कब होगी और कैसे होगा? इसमें यदि योग्य योग्य लोग भाग नहीं लेंगे, तब तक ये नहीं हो सकता। और ये कैसे होगा? किसी न किसी को तो त्याग करना पड़ेगा, चाहे मां को, चाहे पिता को, चाहे पत्नी को, तब जाके होगी बात। देखो, संघर्ष तो सब जगह है। शादी करके संघर्ष नहीं है। हाँ? कितना डाइवर्स हो रहा है? डाइवर्स ही डाइवर्स है। इसलिए संघर्ष तो सब जगह है। इसलिए तो विशेष करके परिवार को संस्कार दिया। देखो, केवल बेटा ही नहीं है, बेटी भी, दामाद भी, होने वाला भी, सब को संस्कार, स्वयं भी। तो इसलिए एक बहुत बड़ी चीज है, स्वयं भी लगे, सबको लगाए, संस्कार दे, तब जाके धीरे धीरे जो है सुंदर एक भक्त परिवार बन सकता है, जिसमें स्वयं भी लगे, दूसरे भी लगे, जिसमें प्रेम प्रीति है, ठाकुर जी केंद्र में है, और जो धर्म की और भक्ति की रक्षा इत्यादि संभव पर। तो इसलिए हम लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए। प्रेरणा हम किस प्रकार से, मतलब लेते हुए किस प्रकार से जो है हम भी वैसे ही माहौल बनाए, ठीक है ना, जिसमें परिवार में शांति भी रहे, ठाकुर जी के कथा कीर्तन भी होते रहे, और धीरे धीरे हम जो है साधुओं के साथ समय भी बिताए, साधुओं को बुलाए, घर बुलाए, सम्मान करें। और यदि बच्चे हैं तो दान करें। किंतु ये भी एक समस्या, एक एक बच्चे ही होने लग गए, क्या करें? 4 होते तो चलो। जय ठाकुर जी। जय माधव प्रिय प्रभु की जय, गौर नित्याय की जय, गौ नित्यानंद प्रभु की जय। आपने चंद्रिका के विवाह में कहा था, हाँ? चंद्रिका के विवाह में कहा था भागना है तो जल्दी भाग जाओ। अभी कह रहे 4 बच्चे होने चाहिए। और क्या? ये देखो भागना है तो भाग जाओ, नहीं तो बहुत सारे बच्चे लाओ।
नहीं नहीं, भागना तब है जब स्वयं आ गए। जब स्वयं नहीं आए तो फिर देखे तो जाओ कुछ। आ जाओ। सुनो सुनो, हाँ। पूरा करो बच्चा। यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, बैठ 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 जाओ, सब बैठो बस। तो इसलिए ये बहुत ही सुंदर परिवेश है और हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं वर्मा जी के परिवार को, ईशा नंदन प्रभु और उनकी पूरी फैमिली को। बहुत ही सुंदर एक माहौल, भक्तों का एक परिवेश इन्होंने बनाया है। ये बहुत ही प्रेरणादायक। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मोटी माता का क्या बोला, केशव का आपने क्या बोला? क्या बोला? एक बार फिर बोला, केशव का क्या बोला अभी आपने? याद नहीं आ रहा क्या बोला। बोलो बोलो, फिर एक बार बोलो। क्या बोला कि मुझे समझ मोटी नहीं आया। माता ने केशव को क्या कर दिया? अच्छा, दान में दे दिया। फिर से बोलो, फिर आप बोलोगे, मैं फिर कुछ बोलूंगा इनको। हाँ रिपीट करो। मोटी माता, इन्होंने सच बोला या नहीं? हैं? देखो अब गौर नेताई सामने नहीं, गुरुदेव सामने है, राधा कृष्ण सामने है ना? दे दिया ना? ठीक है, क्योंकि जाओ। पीछे माता बोलते हैं मुझे विवाह करना है। हाँ, हाँ वो तो चैतन्य महाप्रभु जी की माता भी कहा छोड़ी। ना, उन्होंने तो करवा ही दिया था, उन्होंने तो उन्होंने तो करवा ही दिया था। अभी आज इन्होंने ठाकुर जी के सामने तो है ही है, सारे वैष्णवों के सामने भी बोल दिया है। केशव अगली बार अगर माता कुछ बोलेगी तो कहना कि माता कपटी है, ठीक है? क्या क्या बहू को भी देना है? बहू को भी देना। हम बहू ले लेंगे, उसको किसको देंगे वो हमारी इच्छा। फिर दान जिसको दे दोगे वो देखेगा। हरे कृष्णा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्री रूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छह गोसाई करी चरण वंदन जा ते विघ्ननाश अभिष्ट पुरन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। और बोलो जोर से एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरु पाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोदश श्री श्रीमद श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोदश श्री श्रीमद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपान गुरु परंपरा सपाद सपरिकर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जय तो सपाद सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा विनोद बिहारी जय तो हमारे बीच में उपस्थित श्रीपाद भक्ति वेदांत श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज श्रीपाद भक्ति वेदांत पद्मनाभ महाराज और हमारे श्रीपाद भक्ति वेदांत शांत महाराज जी अन्य अन्य ब्रह्मचारी वृंद वैष्णवी सबके चरणों में मेरा जथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कितनी देर बोलना भैया? ऐसा है, आचार्य लीला प्रकाशित करनी पड़ेगी, हमें लग रहा है ऐसा। धीरे धीरे
गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। क्या प्रसंग क्या चल रहा था मेरा? महाप्रसाद की जय। क्या कथा हुई, क्या है, किस विषय पर चल रही कथा? विषय कुछ अभी अभी 2 दिन पहले रामनवमी का बड़ा सुंदर महोत्सव हुआ है। भगवान श्री राम जी का शुभ आविर्भाव हुआ है। मनाए तो आप लोगों ने है? अरे मनाए कि नहीं मनाया? बोलोगे भी मनाए कि नहीं? थोड़ा जोर से बोलो। हाँ मनाया। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की, हनुमत लाल की। तो भगवान श्री रामचंद्र की लीलाओं को हम लोग श्रवण कर रहे थे। अब भक्तों ने बार बार हमसे कहा प्रभु जी हनुमान जी का चरित्र सुनाओ। जहां जा रहे हनुमान जी का चरित्र सुनने के लिए भक्तों के मन में बड़ी लालसा है। अब जैसे हनुमान जी 2 क्षण में समुद्र लांग गए थे, हम भी 10 मिनट में हनुमान जी का कुछ चरित्र आपको सुना दें। पहले भी कुछ बातें कही हैं और कुछ एक आध नई बातें भी सुन लो। भक्तों का चरित्र सुनने से ही हमारा परम मंगल होता है। श्री हनुमान जी का चरित्र बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र है और बड़ा ही सेवामय भी है। हनुमान जी की सेवाओं के वैशिष्ट्य को यदि देखो, भगवान राम जी का चरित्र अध्यात्म रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में, कवितावली में, विष्णु धर्मोत्तर में, श्रीमद् भागवत में, बहुत सारे शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान श्री राम जी का चरित्र वर्णन किया गया है। भगवान श्री राम जी के चरित्र में पूरी रामायण यदि आप उठाकर देख लो, चरित्र तो बहुत सारे हैं, सारे भक्तों का विशेष वैशिष्ट्य है, किंतु पूरी रामायण में यदि आप ध्यान से देखोगे 2 विशेष पात्र हैं। एक तो हो गए श्री राम जी, दूसरे कौन से हुए? कौन से हुए? हमें क्या पता आप किसका नाम लोगे। दूसरे हुए श्री हनुमान जी। कौन से हुए? श्री हनुमान जी की जो सेवा है ना, उनकी सेवा की परिपाठी, उनकी सेवा की बुद्धिमता, सेवा का चातुर्य यदि आप लोग कुछ अनुशीलन करेंगे, विश्वास कीजिए हनुमान जी से प्रेम हो जाएगा। हैं तो हनुमान जी दास्य रस के परिकर, किंतु जब भगवान श्री राम जी ने उनको सीता जी का संवाद लेने के लिए भेजा, लंका पार नहीं, समुद्र पार, लंका में गए ना, तो जब हनुमान जी ने सीता जी को राम जी का संदेश सुनाया, तो वहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सरस और मार्मिक वर्णन किया है कि किस प्रकार हनुमान जी सीता जी को राम जी का चरित्र श्रवण करा रहे हैं और राम जी के भावों का वर्णन कर रहे हैं। तो हनुमान जी बड़े सुंदर रूप में, बड़ी चतुरता पूर्वक सीता जी को राम जी के श्रृंगार रस के भावों का भी वर्णन कर रहे हैं। तो यद्यपि हैं तो दास्य रस के, किंतु हनुमान जी की महिमा अपरंपार। महादेव जी ने पार्वती जी को जब रामायण सुना रहे ना, तो उन्होंने हनुमान जी के लिए 2 विशेषण प्रयुक्त किए। किसने किए? शिवजी जी ने पार्वती जी को जब हनुमान जी का चरित्र सुना रहे तो 2 विशेषण बतलाए। कृतकार्यम निराकांक्षम। कौन कौन से? कृतकार्यम निराकांक्षम। कृतकार्यम माने स्वयं राम जी सीता जी से कह रहे हैं कि ये हनुमान जी ने सारी सेवाएं संपन्न कर दी, सारी सेवाएं, और अभी भी सेवा के लिए ही अभिलाषी हैं, किंतु इतना होने पर भी निराकांक्षम, उनके हृदय में कोई आकांक्षा नहीं है। तो इनको क्या दें, इनको क्या दें? तो स्वयं राम जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी आपके कारण सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य पद मिला, आपके कारण विभीषण को लंका का राज्य पद मिला, आपके कारण मुझको अयोध्या का राज्य पद मिला, आपको कुछ भी नहीं मिला, आपको क्या दे? हनुमान जी कैसे निराकांक्षम है। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य पद मिला, विभीषण को लंका का राज्य पद मिला, राम जी को अयोध्या का राज्य पद मिला। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु सुग्रीव को 1 पद मिला, 1 पद मिला, किष्किंधा का राज्य पद मिला 1 पद, विभीषण जी को 1 पद मिला, और प्रभु क्षमा कीजिए आपको भी अयोध्या का 1 ही पद मिला। और हनुमान जी राम जी के दोनों चरण पकड़ के कहते प्रभु हमको 2-2 पद मिले हैं, हमको 2-2 पद मिले हैं, लाभ में कौन अधिक है, आप सुग्रीव विभीषण न मैं। ऐसे हनुमान जी निराकांक्षम है, एकदम कोई आकांक्षा नहीं उनके मन में, कोई आकांक्षा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी जब उन्होंने रामचरित्र लिखा ना रामायण में, रामचरितमानस में, उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने कवितावली इत्यादि में हनुमान जी का चरित्र बड़े विस्तार से वर्णन किया और ऐसे पराक्रम हनुमान जी के वर्णन किए
जैसे राम जी का चरित्र विस्तार से लिखा ना, ऐसे ही हनुमान जी का चरित्र भी बड़े विस्तार से लिखा। तो दो एक बात हनुमान जी के सेवा वैशिष्ट की सुन लो। अब तो हास्य रस चल रहा है ना, अब ऐसी सभा में क्या हम गांभीर्य रस लेकर आए। हास्य रस की दो एक बात सुन लो। हनुमान जी का वैशिष्ट देखो, वाल्मीकि रामायण के अनुसार, रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी का राम जी से प्रथम मिलन कहां हुआ? कहां हुआ है? कहां हुआ? ऋषयमुख पर्वत पर। किष्किंधा में कैसे होगा प्रथम मिलन? किष्किंधा तो सुग्रीव जी छोड़े बैठे थे, उस समय तो बाली का राज्य था। अब ध्यान से समझना बात को, बड़ा गंभीर मर्म है इसके पीछे। रामचरितमानस पर भी टीकाएं लिखी गई हैं, बड़ी विशेष विशेष टीकाएं, उनमें बड़ा सरस वर्णन किया गया। जब प्रथम भेंट हुई तो सुग्रीव ने, वो तो बैठे ऋषिमुख पर्वत पर, भय से बैठे कि बाली कहीं आकर के हमारा वध ना कर दे। तो देखा दूर से जो दो राजकुमार चले आ रहे हैं, सुग्रीव भय में पड़ गए, भैया ये कहीं बाली के भेजे दूत तो नहीं है। तो किसको भेजा? हनुमान जी को भेजा। आप ब्राह्मण बटू का रूप धारण करके जाओ और आप जाकर के हमको जैसा संकेत करोगे ना कि ये हमारे अनुकूल करने वाले हैं ना हमारा अनिष्ट करने वाले, आप जैसा संकेत करोगे हम वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो हनुमान जी को किस रूप में वर्णन किया? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, आप गुरुदेव की भांति कृपा करो। ये बात यहीं पर परिलक्षित हो रही है। सुग्रीव जी ने हनुमान जी का आश्रय लिया। आप जाओ, आप जैसा संकेत करोगे हम क्या करेंगे? हम वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो हनुमान जी ने जाकर राम जी के साथ में वार्तालाप किया और सुग्रीव को संदेश देते, ये तो तुम्हारा ही उद्धार करने वाले। तो सुग्रीव जी ने वैसा व्यवहार किया कि नहीं किया? तो राम जी के चरित्र पर संदेह तो बहुत लोगों को हुआ, किंतु विशेष करके दो लोगों को संदेह हुआ। एक तो सुग्रीव को और दूसरा किसको हुआ? सती को हुआ तो संदेह, ये भगवान है अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। तो सती ने भी गुरु किए। कौन किए? महादेव जी। महादेव जी ने उनको परामर्श दिया, देखो ये राम पर संदेह मत करो, ये परब्रह्म है। किंतु सती जी ने फिर भी संदेह किया, गुरु की बात नहीं मानी, संदेह किया। परीक्षा करने गई तो क्या हुआ? सती जी की क्या अवस्था हो गई? हनुमान महादेव जी ने परित्याग कर दिया। माता सीता का रूप बनाकर गई ना परीक्षा करने, अब स्त्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, और सती जी को देह परित्याग करनी पड़ी। किंतु सुग्रीव ने क्या किया? हनुमान जी के परामर्श को माना। आप जैसा संकेत दोगे हम वैसा व्यवहार करेंगे। कवितावली में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं हनुमान जी का वैशिष्ट देखिए। राम जी को सुग्रीव से मिलाया, सुग्रीव को राम जी से मिलाया। अब जब राम जी ने और सुग्रीव ने माता सीता का अन्वेषण करने के लिए, उनको ढूंढने के लिए भेजा ना, 4 दल भेजे थे। कितने भेजे? अरे ऐसे एकदम उदासीन संप्रदाय के भक्त बैठे हो, जैसे ना कोई उत्तर देते हो, ना सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे, ऐसा लगता मायावादी हो गए हो सारे, बस ब्रह्म का ध्यान कर रहे। अरे उत्तर तो दो, कितने दल बनाए थे? हमें पता ही नहीं है तो कैसे? हम थोड़ी थे उस समय में, हमको थोड़ी भेजा था ढूंढने के लिए। 4 दल बनाए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। 3 दल तो लौट आए। एक दल कौन सा था? जो दक्षिण में गया, जिसमें हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी सब थे। वो दल रुक गया। पहुंचे कहां पर? समुद्र के तट पर। अब जामवंत जी सबसे पूछ रहे, भैया बतलाओ किसमें कितना बल है, कौन इस समुद्र को लांग सकता है? अब सब अपना अपना बल बतला रहे। भाई मैं आधा लांग सकता हूं, एक कहता मैं पूरा लांग सकता हूं, वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा पता नहीं। हनुमान जी एक कोने में बैठे राम राम जप रहे हैं। जामवंत जी कह रहे सब अपने बल का वर्णन कर रहे हैं, आप भी अपने बल का वर्णन करो। हनुमान जी कहते हमारा अपना बल है ही नहीं, वर्णन क्या करें? जिसका अपना बल है वो अपने बल का वर्णन करे, हमारा तो अपना बल है ही नहीं, हमारे बल तो श्री राम है। अब जामवंत जी ने कहा भैया इनको तो श्राप है, इनको तो इनके बल का स्मरण कराना पड़ेगा। तो उनके बल का स्मरण कराया। अरे आपने इतने बड़े बड़े कार्य किए, बल का स्मरण कराया। हनुमान जी को जोश आ गया, अच्छा अभी एक फलांग में लांग जाऊंगा समुद्र को। एक फलांग में समुद्र लांग गए। हम कथाओं में भी ऐसे समुद्र लांग रहे हैं, क्योंकि समय 5-7 मिनट तो हो ही गए होंगे, घड़ी देख लो, हाँ बस 5 मिनट हो गए। समुद्र लांग कर जब गए, हनुमान जी ने मन में विचार किया, भाई मैं लंका में कैसे प्रवेश करूं? तो मच्छर जैसा रूप बना लिया। कैसा रूप बनाया? एकदम मच्छर के जैसा। अब भीतर प्रवेश करने लगे तो लंका की रक्षा करती थी एक लंकनी, लंकनी नाम की राक्षसी थी ना, यही रहती थी फरीदाबाद में। बाद में लंका शिफ्ट हो गई थी, हैं? तो लंकनी ने रोका, अरे कहां जा रहे हो, हमारी आज्ञा लिए बिना। हनुमान जी ने देखा ये कौन आई, एक घूसा मारा उसके मुंह पर, धुम से जाके गिर पड़ी लंकनी। अब हैं? अभी पता चलेगा प्रसाद के समय में। अब हनुमान जी ने एक मुष्टि प्रहार किया, वो तो गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। उठ करके हनुमान जी के चरण पकड़ लिए,
क्यों? उसको ब्रह्मा जी ने कहा था यदि किसी बानर का मुक्का लगने से तुम मूर्छित हो जाओ, समझ लेना लंका का विनाश हो गया। अब हाथ जोड़े हनुमान जी को, जाओ प्रभु आपको कौन रोकेगा, है? हनुमान जी गए भीतर, छोटा मच्छर जैसा रूप बना रखा है। अब सीता जी को ढूंढ रहे लंका में जाकर के, इधर उधर ढूंढ रहे। रावण के महल में चले गए हनुमान जी। अब रावण तो बड़ा विलासी था ना, 10, 20, 50 स्त्रियों के साथ में लेटा हुआ है। हनुमान जी ने जाकर एक दो स्त्री का मुंह देखा, यहाँ सीता जी तो नहीं हो सकती, तो उनके मन में बड़ा संकोच आया, लज्जा आई, अरे मैं ब्रह्मचारी होकर के स्त्रियों का मुख देख रहा हूं। लौट आए वापस। अब ढूंढ रहे लंका में, तो उनकी विभीषण से भेंट हुई, राम राम का शब्द सुना, विभीषण ने बतला दिया है सीता जी कहां पर। अब हनुमान जी की चातुर्य देखिए, उनकी सेवा वृत्ति देखिए। हनुमान जी पहुंचे, रूप कैसा बना रखा है, एकदम छोटा सा रूप है। प्रसाद पाया कि नहीं पाया कुछ, अरे कुछ जल पर पिलाया कि नहीं पिलाया इनको ऐसे बैठे एकदम। हनुमान जी पहुंचे अशोक वाटिका में, रूप कैसा बना रखा है, अरे जोर से बोलो, कैसा बनाया, मच्छर के जैसा छोटे से, और गदा घुमा रहे। और पहुंच गए लंका में, उनको सीता जी दिख गई, तो सीधे नहीं गए सीता जी के पास। सीता जी जिस पेड़ के नीचे बैठी थी, ऊपर चढ़कर बैठ गए। इतने में रावण आया, तर्जन गर्जन करने लगा, सीता जी पर बड़ा उल्टे सीधे शब्द गए, फिर चला गया। हनुमान जी ने देखा माता सीता बड़े दुख में है, बड़े दुख में। अब माता सीता हनुमान जी को सुत कहकर बुलाती, गोसाई जी कहते हैं सुत कहकर, माने बेटा, बड़ा बेटा, ज्येष्ठ पुत्र मानती है। अब क्या हुआ, हनुमान जी ने धीरे धीरे राम जी का चरित्र कहना आरंभ किया। सीता जी के कान में राम जी का चरित्र गया, तो कान उसी ओर चले गए, लंका में कौन राम जी का गुणगान कर रहा है। अब हनुमान जी ने जब देखा ना हाथ सुनने लगी है धीरे धीरे, तो फिर क्या किया, छोटे से रूप में नीचे कूदे। जब सीता जी के सामने है ना, झट से कूद करके सीता जी ने मुंह फेर लिया। उन्होंने क्या सोचा, रावण ने कोई कुचाल रची है और किसी पर पुरुष का मैं दर्शन नहीं करूंगी, मुंह फेर के बैठ गई। अब हनुमान जी इतने चतुर है, रामदूत अतुलित बल धामा, और साथ ही साथ रामदूत अतुलित बुद्धि धामा भी है हनुमान जी। इतने सुंदर वचन कहे सीता जी को, उनका मन मोह लिया। राम जी की ऐसी ऐसी लीला सुनाई, सीता जी ने अपना मुंह फेर लिया। फिर हनुमान जी ने, राम जी ने जो चिन्ह दिया था ना, क्या चिन्ह दिया था, एक अंगूठी दी थी राम नाम अंकित, वो दे दी। सीता जी को विश्वास हो गया, अब बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी प्रसन्न, और हनुमान जी को बड़े आशीर्वाद दिए, हे सुत, हे पुत्र, हे तात, इतने दिनों के बाद तुमने मुझको राम जी का संवाद सुना करके मेरे चित्त में आशा दी है कि मेरे प्राण अब बच जाएंगे। अब समझो बात को ध्यान से, सीता जी इतने दिनों से रावण के कारागार में है, रावण की कैद में है, तो सीता जी इतने दिनों से देख रही हैं कि रावण का कितना बल है। कितना बल था रावण में, अरे जिसने कैलाश उठा दिया, साधारण बलशाली होगा, बड़ा बलवान, और कुंभकर्ण, मेघनाथ, सब बड़े बड़े बलवान। तो सीता जी को पता है ये राक्षस लोग कितने बलवान, और हनुमान जी ने कैसा रूप बना रखा है, एकदम छोटा सा। अब जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माता को सांत्वना देना होता है ना, छोटा बच्चा, माता को कोई दुख है, माता रो रही है, तो बच्चा क्या करेगा, गले लगेगा माता के, उसको सांत्वना देगा, माता चिंता मत करो मैं सब ठीक कर दूंगा। अब हनुमान जी के मन में क्या आया, ये मेरी माता जानकी है ना, मैं इनको सांत्वना दूंगा, बड़े दिन से दुख में है, विलाप कर रही है, राम जी कब आएंगे कि कब नहीं आएंगे, मेरा क्या होगा, उद्धार कब होगा। तो हनुमान जी सांत्वना दे रहे सीता जी को। रूप कैसा बनाया है, एकदम छोटे मच्छर जैसे, और गदा घुमा घुमा कर कह रहे, माता आप चिंता मत करो, राम जी के बाणों में बड़ा बल है। छोटी सी गदा सीधे हाथ से घुमा रहा, और माता जानकी को सांत्वना दे रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कवितावली में, पद्य और गद्य दोनों में लिखा है, कहते हैं हनुमान जी माता को सांत्वना दे रहे, माता चिंता मत करो, राम जी की सेना बड़ी बलशाली है, कैसे, मच्छर जैसे। माता बैठी उनको नीचे देख रही है ऐसे, इतने छोटे से, उछल उछल कर कह रहे, हम सब आएंगे राम जी के साथ में, पूरी लंका को मठिया मेट कर देंगे, आप चिंता मत करो, इन सब राक्षसों को मार देंगे। माता चिंता में पड़ रही है, छोटा सा, बातें कर रहा बड़ी बड़ी। माता के मन में आया, हनुमान जी भी सुध बुध भूल गए, सीता जी भी सुध बुध भूल गई। हनुमान जी को ध्यान में नहीं है कि मैंने इतना छोटा रूप बनाया, और सीता जी बैठकर उनको देख रहे, तो सीता जी को संदेह हो गया, ये इतना छोटा सा बानर। तो सीता जी ने संदेह में भर के हनुमान जी से पूछा, बेटा राम जी की सेना में क्या सारे तुम्हारे जैसे ही हैं, राम जी की सेना में क्या सारे तुम्हारे जैसे। अब हनुमान जी सोच रहे मैं लंका लांग करके आ गया ना, माता सोच रही है बानर बड़ा बलशाली है, उनको तो याद नहीं है कि मैं इतना छोटा हूं, तो बड़े प्रेम से लज्जा आ गई उनको, हाथ जोड़कर कहते माता मैं ना उनमें सबसे बलवान हूं, मैं उनमें सबसे बलवान हूं, है कैसे, मच्छर जैसे। अब सीता जी कहते अरे पुत्र तुम सबसे बलवान हो तो दूसरे कैसे होंगे। अब हनुमान जी ने देखा रे माता को तो संदेह हो गया, झट तब धरी कीन है, तब कपि धरी है विशाल रूपा,
तब हनुमान जी ने क्या किया, बड़ा विशाल रूप धारण किया, बड़ा विशाल, बड़ा तर्जन गर्जन करने वाला रूप। जब बड़ा विशाल रूप धारण किया ना, हवाएं रुक गई चारों ओर, ऐसा स्तब्ध हो गया पूरा परिवेश। अब सीता जी को क्या हो गया, विश्वास हो गया, हाँ भैया राम जी की सेना तो रावण का बड़ी शीघ्र वध कर देगी। बीच बीच में घड़ी भी देख लो, 2 मिनट और ले लो। अब क्या हुआ, आप सबने सुना है, हनुमान जी का बंधन हो गया। कहां पहुंचे, रावण के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। इच्छा पूर्वक बंधे थे हनुमान जी, रावण के सामने ले जाकर के खड़ा कर दिया। अब हनुमान जी बंधन में बंधे हुए हैं, एकदम निर्भय। अरे जिनका नाम लेने से ही भक्त लोग निर्भीक हो जाएं, उनको क्या भय लगेगा। रावण के सामने खड़े, रावण बड़ा तर्जन गर्जन कर रहा है, रे मूर्ख, रे बानर, रे बंदर, तूने किसके बल पर मेरी अशोक वाटिका को चौपट कर दिया। हनुमान जी खड़े हैं, कुछ उत्तर नहीं दे रहे। अब रावण देख रहा है इस बानर को कोई भय नहीं लगता है, इस बंदर को कोई भय नहीं, तो रावण ने मृत्यु को बुलाया, मृत्यु को बुला करके हनुमान जी के पास में खड़ा कर दिया। मृत्यु को देख करके तो भय लगेगा। हनुमान जी मृत्यु की ओर देख रहे, तुम कौन हो, वो कहती हम मृत्यु हैं। अच्छा खड़ी रहो, खड़ी रहो। रावण कह रहा है, अरे बानर, मृत्यु तेरे पास में खड़ी, तुझको फिर भी भय नहीं लगता। हनुमान जी ने मृत्यु की ओर नीचे से ऊपर तक देखा और रावण से कहते, खड़ी मेरे पास है, देख तेरी ओर रही है, तो भय मुझे क्यों लगेगा, भय तो तुझे लगेगा। अब रावण को तो बड़ा क्रोध आया और हनुमान जी ने उसको सुंदर सुंदर परामर्श दिया, अरे माता जानकी को छोड़ दे, तेरे कुल में कोई नहीं बचेगा, माता जानकी को छोड़ दे। उसको गुस्सा आ गया, ये बंदर बढ़ाया, गुरु बनकर के हमको उपदेश दे रहा, इसका वध कर दो, इसका मस्तक काट दो। जब मस्तक काटने के लिए राक्षस चले, विभीषण जी बीच में आ गए। उन्होंने कहा, भैया दूत को तो दंड, प्राण दंड नहीं दिया जा सकता, इसको कोई और दंड दो। तो जब कोई और दंड देने की बात आई, हनुमान जी के मन में आया, भैया कहीं हमारी नाक कान ना काट दे, इसको कहीं सुपड़खा की याद ना आ जाए, कहीं हमारे नाक कान ना काट दे। अब हनुमान जी के मन में ये चल रहा है, मेरी नाक, मैं किसका दूत होकर आया, राम जी का दूत, मेरी नाक किसकी नाक है, राम जी की नाक। अगर मेरी नाक कट गई, इसका मतलब राम जी की नाक कट गई। तो हनुमान जी कितने बुद्धिमान, कितने बुद्धिमान हैं, बारे बजरंगबली। अपनी पूंछ उठाई, उसको माथे से लगाने लगे, उसको चूमने लगे, गले से लगाने लगे, ऐसे ऐसे पूंछ को यूं यूं करने लगे। अब रावण तो असुर है ना, मोटी बुद्धि का, दूर से सोच रहा, रे कपी की ममता, बंदर की ममता तो पूंछ पर है, इसकी पूंछ जला दो। अब चारों ओर से राक्षस लोग दौड़े पूंछ जलाने को, सारी लंका से हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई, बड़ी विशाल कर दी। अब पहले घी, बानरों के, असुरों के मन में क्या आया, ये बंदर आया ना राम जी का, घी से इसकी पूंछ जलाएंगे, इतने मोटी बुद्धि के होते असुर, घी से इसकी पूंछ जलाए। अब हनुमान जी ने इतनी पूंछ बढ़ाई, लंका में घी खत्म हो गया, सारा घी समाप्त हो गया। अब तेल लेकर आए, कपड़े लेकर आए, तो सारे घर से, सारे लंका वासियों ने कपड़े, तेल, घी दिया था। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी ने सबको महाप्रसाद दिया। जिसके घर से घी आया, तेल आया, कपड़ा आया, सबके घर जलाए। तुमने मुझको भिक्षा दी है ना, मैं तुमको महाप्रसाद दूंगा। अब जब पूंछ जली तो हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी। तब से लेकर रावण को हनुमान जी की पूंछ से बड़ी चिढ़ थी, बड़ी चिढ़ है। तो एक छोटी सी बात और कह दूं, जब युद्ध आरंभ हुआ ना, कितनी चिढ़ थी हनुमान जी की पूंछ से रावण को। युद्ध आरंभ हुआ, पूरे युद्ध में हनुमान जी छाए हुए हैं, पूरे युद्ध में। और क्या करते हैं, मारते पीटते तो हैं, जो उनकी बटका, उनकी जोट का योद्धा हो ना, उसका तो वध कर दें, किंतु जो कोई हल्का योद्धा हो ना, उसको मारते नहीं थे, उसमें चांटे मारते थे हनुमान जी। 2-3 चांटे घूसे मारकर उसको छोड़ दे। क्यों मारकर छोड़ दे, वो जाए ना जब राक्षसों के अपने शिविर में, तो गाल पकड़कर कहता था, भाई उस बानर के सामने मत जाना, चाहे किसी से युद्ध करो, उस बानर के सामने मत जाना। क्यों, कहते बहुत जोर का चांटा मारता भाई, उसके पास में मत जाना। भय का संचार कर दिया हनुमान जी ने। अब चारों ओर बस हनुमान जी और हनुमान जी की पूंछ की चर्चा हो रही है, जितनी सेनाएं सबको मार दे। रावण इतना कुपित हो गया, पूंछ का नाम सुनकर तो चिढ़ जाता था। रोज संवाददाता आते, समाचार देने वाले, और पूंछ का वर्णन करते, अरे हनुमान जी और उनकी पूंछ, इतने असुर मार दिए, इतने असुर। रावण को आ गया क्रोध। एक दिन उसने चतुरंगिणी सेना भेजी, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना, जाकर उस बानर को पकड़ के लाओ, जिंदा या मुर्दा पकड़ करके लाओ मेरे सामने। चतुरंगिणी सेना आ गई, चारों ओर से हनुमान जी को घेर लिया। राम लक्ष्मण जी पर्वत के ऊपर में बैठ करके युद्ध देख रहे हैं। जब लक्ष्मण जी ने देखा ना हनुमान जी को चतुरंगिणी सेना ने घेर लिया, हाथ में गदा भी नहीं है, लक्ष्मण जी सहायता करने चले, राम जी ने हाथ पकड़ के रोक दिया, जरा इनका युद्ध देखो। चतुरंगिणी सेना ने चारों ओर से घेर लिया। अब क्या हुआ, बाहरे बजरंगबली, राम दूत अतुलित बल धामा, ऐसा पराक्रम दिखाया। गोसाई जी कवितावली में लिखते हैं, छोटे हुए और उछल करके, जो हाथी था ना, हाथी के ऊपर सैनिक बैठा है, उछल करके सैनिक के ऊपर पहुंचे, सैनिक को नीचे पटका, विशाल रूप धारण किया, हाथी को हाथ में उठाया, हाथी पर देकर मारा। हाथी ते मारे हाथी, घोड़न ते मारे घोड़ा। गोस्वामी जी लिखते, हाथी पटक पटक करके हाथी मारे,
घोड़े पटक पटक करके घोड़े मारे, और जो पैदल थे ना उनको लपेट दिया पूंछ में हनुमान जी ने, और इधर पटके उधर पटके, इधर पटके उधर पटके, चतुरंगड़ी सेना साहब हैं। अब हनुमान रावण अपने महल में घूम रहा है, उसके मन में क्या आ रहा है, आज होना हो हनुमान को पकड़ करके लाएंगे। हनुमान जी तो पकड़ में आए नहीं, पूरी सेना साफ हो गई। सूचना देने वाले संवाददाता पहुंचे, रावण ने पूछा, अरे बंदर कहाँ है? बंदर तो वही है। सेना साफ कैसे हो गई चतुरंगनी सेना? अरे महाराज, संवाद देने वाले करे उस बानर के सामने टिकना कठिन है। अरे सामने से टिकना कठिन है, पीछे से पकड़ लेते। तो संवाद देने वाले कह रहे, प्रभु फिर आप नाराज हो जाओगे। अरे नाराज नहीं होंगे, बताओ। जो सामने गया वो तो टिका, जो पीछे गया वो तो बिल्कुल भी नहीं टिका, पूंछ से पटक पटक कर मारा। रावण का था, पूंछ का नाम मत ले, पूंछ का नाम मत ले। अब उसे आ गया क्रोध। अगले दिन उसने भेजी अमर सेना। रावण के पास में एक अमर सेना थी जिसको युद्ध में कोई नहीं जीत सकता था। जब अमर सेना पहुंची तो राम जी चिंता में पड़ गए। गुप्तचरों के माध्यम से पता चला कल अमर सेना आएगी। अब राम जी का एक प्रण था कि मैं इस पृथ्वी को निशाचर विहीन कर दूंगा, राक्षस नहीं बचेगा इस पृथ्वी पर कोई। अब चिंता में पड़ गए, हमारा वचन कैसे पालन हो। हनुमान जी की सेवा देखी। जब हनुमान जी को पता चला ना अमर सेना आ रही है, उन्होंने राम जी से कहा, प्रभु चिंता क्यों करते हैं? राम जी कहते हैं, अमर सेना आ रही है, चिंता ना करें। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु हमारे ऊपर छोड़ दो। यदि उनको ब्रह्मा जी का वर है कि वो अमर है, हमको हमारी माता जानकी जी का वर है। हमारी माता जानकी ने हमको वर दिया है, तुम अजर अमर रहना तात, हम कल निपट लेंगे। अगले दिन अमर सेना आई, चारों ओर से हनुमान जी को घेर कर खड़ी हो गई। रावण सोच रहा आज तो हनुमान पकड़ा जाएगा, आज ये बंदर पकड़ा जाएगा। हनुमान जी उनसे लड़े नहीं। क्या किया? अपनी पूंछ बढ़ाई। वो तो मर नहीं सकते, लड़ेंगे क्या? पूंछ बढ़ाई, इतनी बढ़ाई और सारी सेना को लपेट लिया, और लपेट कर सारी सेना को उड़े हनुमान जी। अब जब उड़े ना तो वो अमर सैनिक सोच रहे, भाई कहां लेकर के जा रहा है, कहां लेकर जा रहा है, न जाने कहां से पटकेगा। मर सकते तो भी बात थी, हम तो मरेंगे भी नहीं, कहां से पटकेगा। हनुमान जी लेकर चलते गए, अंतरिक्ष में चले गए, और घुमा घुमा कर उनको पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से परे फेंक दिया। और लौट कर राम जी के पास है। राम जी ने पूछा, अमर सेना का क्या हुआ? हनुमान जी कहते, प्रभु अमर हो गई, चिंता मत करो, अमर हो गई। राम जी ने गले लगा लिया, वाह रे बजरंग बली, क्या सेवा है तुम्हारी। और इधर रावण घूम रहा अपने महल में। आज तो अमर सेना गई थी, आज तो हम बंदर को जरूर पकड़ करके लाएंगे। सैनिक लोग पहुंचे, संवाद देने वाले। रावण ने पूछा, बंदर कहाँ है? बंदर तो वही है। सेना साफ। अरे अमर सेना कैसे साफ हो जाएगी? प्रभु फिर जब कहेंगे तो आप नाराज हो जाओगे। अरे नाराज नहीं होंगे, बतलाओ। पूंछ में लपेट करके फेंक दिया। पूंछ का नाम मत ले, पूंछ का नाम मत ले। बड़ा क्रोध में पड़ गया, बड़ा क्रोध में। तो कहने की तो बातें बहुत सारी है। हनुमान जी की बड़ी सेवा वृत्ति है। अंत में रावण स्वयं भी गया, भेष बदल करके कि मैं स्वयं जाऊंगा, और भेष बदल करके गया युद्ध में, और 20 हाथ से हनुमान जी की पूंछ को पकड़ करके खींच रहा है। इस पूंछ को ही उखाड़ दूंगा, इतनी चिढ़ है उसको, पूंछ को उखाड़ दूंगा। उखाड़ सकेगा हनुमान जी की पूंछ? बल कितना है उसमें, कैलाश पर्वत उठा दिया। तो हनुमान जी उससे लड़े नहीं, उल्टा मुंह करके खड़े रहे। रावण सोच रहा अब ये मुड़ेंगे और मुझसे लड़ेंगे। हनुमान जी ना मुड़े ना लड़े, हनुमान जी तो उड़े, और इतनी क्षिप्र गति से उड़े, रावण को समझ में नहीं आया, पूंछ पकड़ करके लटक गया। और हनुमान जी बहुत ऊपर ले गए। अब उनके मन में आया, इसको फेंक दूं यहां से, ना इसको भी अंतरिक्ष में फेंक दूं रावण को। किंतु उन्होंने सोचा, यदि मैंने रावण को निपटा दिया तो फिर जगत में क्या होगा, मेरी प्रतिष्ठा हो जाएगी। हनुमान जी कह रहे मन में मेरी प्रतिष्ठा हो जाएगी, इसलिए बहुत ऊपर से पटक दिया रावण को। नीचे आकर गिरा भूमि पर, घुटने छिल गए रावण के। और गुप्तचर लोग है ना, छुप कर गया था, किंतु गुप्तचरों को पता होता है, वो पीछे पीछे आ रहे रावण के। उनको पता, तो तू भी गया था, पूछ से तेरा भी सामना होगा। तो कुछ बोले नहीं। रावण से कह रहे, प्रभु आज युद्ध का समाचार नहीं पूछेंगे। गुप्तचर कह रहे रावण से, आज युद्ध का समाचार नहीं पूछोगे। रावण स्वयं टूटा फूटा आया था, उसका तो सामना हुआ। हनुमान जी से भी पूछे तो कहता नहीं, युद्ध का समाचार हमको पूरा पता है। तो सैनिक लोग कहते हैं, प्रभु आपको कैसे पता? अरे हम गए थे, हमने देखा था युद्ध में क्या हुआ। तो गुप्तचर कह रहे, प्रभु पूंछ से तो सामना नहीं हो गया। रावण कह रहा, पूंछ का नाम मत ले, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। मेरे मोटी माता एकदम सामने आके बैठी है। मोटी माता बिल्कुल सामने आके बैठी है। किस लिए पता है? कि अगर ये कथा नहीं बोल देगा माधव प्रिया, मैं इसकी जान खाती हूँ। अभी रुक जाओ, है ना? प्रसाद भी नहीं देगी माता। चलो, कथा तो हम लोगों ने सुन ली। सभी लोगों की पहले भी कथा सुनी है। समय भी हो गया, कुछ भक्त लोगों को देरी भी हो रही है। महाराज जी का
व्यस्तता वाला कार्यक्रम भी होता है बहुत, तो इसीलिए मैं केवल एक आधी बात गुरुदेव की बोल करके मंगलाचरण इत्यादि भी नहीं कर रहा हूँ। गुरुपाद पद्म के चरणों में, वैष्णवों के चरणों में, सभी श्रीमन महाप्रभु श्री श्री राधा कृष्ण सभी के चरण कमलों में प्रणाम है। श्रील गुरुदेव एक बात बोलते थे कि लंका में युद्ध हो गया, रावण की सेना, रावण इत्यादि सभी मारे गए। विभीषण जो है उनको राज सिंहासन, राज तिलक कर दिया भगवान राम ने। वहां से अयोध्या में लौट आए। बीच में तो बड़े सारे प्रसंग हैं, अयोध्या में लौट आए। राज सिंहासन पर स्वयं भी विराजित हुए राम नवमी के दिन ही। गुरुदेव ये बातें सारी बतला रहे हैं कि राम नवमी के दिन में उनका जन्म भी हुआ है, फिर वनवास भी उसी दिन हुआ। फिर जब राज सिंहासन पर विराजित हुए तब भी राम नवमी वाले दिन। कोई एक और चीज भी बताई गुरुदेव ने, मैं भूल गया हूं अभी। आगमन, आगमन भी उसी दिन ही है, और नहीं एक दिन बाद में अभिषेक हुआ था ना, 6-7 दिन पहले। कुछ और है गुरुदेव ने, किंतु 4 बातें बताई। जैसा भी हो तो वहां पर आ गए, और कुछ समय तक रहने के बाद में वहां पर सुग्रीव जी भी साथ में आए थे, वहां पर विभीषण भी साथ में आए थे, वहां पर और बहुत सारे वानर लोग साथ में आए, हनुमान जी भी आए, अंगद जी भी आए। सभी लोगों को भगवान राम ने विदाई दिया, किसी को कोई उपहार दे करके, तो किसी को कोई उपहार दे करके, एक एक करके सबको विदाई दी। किंतु अंगद जी दिखाई नहीं दे रहे थे, उनको भी जैसे कैसे करके ढूंढवाया, उनको भी विदाई दी। किंतु हनुमान जी को विदाई जो है वो भगवान राम ने नहीं दी। तो गुरुदेव कह रहे हैं क्यों नहीं दी उनको विदाई? क्योंकि सुग्रीव जी जो हैं वो पीछे अपने पत्नी को, परिवार के सदस्यों को छोड़ करके आए थे। राज सिंहासन उनका अपना भी था, इसलिए उनको वापस भेज दिया कि तुम्हारे पास में सेवा भी है और कुछ ऐसे वाले व्यक्ति भी हैं जो पूर्ण रूप में तुम्हारे ऊपर निर्भर हैं। सुग्रीव जी को भेज दिया, विभीषण जी को भेज दिया, और बहुत सारी जो सेना थी सबको भेजा, किंतु हनुमान जी का ऐसा कुछ था ही नहीं जो पीछे रह गया हो। ऐसा वाला उन्होंने अपने जीवन में कुछ विस्तार किया ही नहीं था। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी ने उनको विदाई दिया नहीं, उनको अपने पास में रख लिया। तो इसलिए गुरुदेव ये वाली कथा सुना करके कहते थे कि देखो, अगर पीछे कुछ भी छोड़ करके आओगे तो भगवान क्या करेंगे कि अभी पूर्ण रूप में तुम मेरे साथ में नहीं रह सकते, और भी तुम्हारे लिए अभी कुछ दायित्व हैं। किंतु अगर पीछे कुछ भी नहीं रहेगा तब क्या होगा? भगवान पूर्ण रूप में स्वीकार करेंगे। तो इसलिए पीछे कुछ छोड़ना नहीं। फिर कुछ गृहस्थ भक्त लोगों ने प्रश्न किया गुरुदेव से कि गुरुदेव हम लोगों का कैसे करें? तब गुरुदेव ने उनको बताया, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यानावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। आसक्ति रहित, संबंध सहित, विषय समूह सकली माधव। आसक्ति रहित होकर के इस जगत में रहना, और जो उत्तम भक्ति है उसका पालन करना। तब भगवान रामचंद्र तो क्या, स्वयं कृष्ण चंद्र जो हैं वो तुम्हारे को अपनी सेवा में पूर्ण रूप में स्वीकार करेंगे। इस प्रकार का गुरुदेव ये उपदेश प्रदान करते थे। कथा को आज यहीं पर ही विराम देते हैं। श्रील गुरुदेव की जय, भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, श्री हनुमान जी की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हमारे गुरुदेव और एक बात बोलते थे कि
हनुमान जी के पास में एक बार हूं। कौन गए बुलाने के लिए, नाम तो मेरे को नहीं स्मरण आता, कि जो श्री कृष्ण चंद्र हैं वो आपको बुला रहे हैं। गरुड़ जी गए बुलाने के लिए कि आप चलो, और जो आराध्य देव स्वयं भगवान कृष्ण हैं वो बुला रहे हैं। कुछ और क्या? यादवेंद्र सरकार आपको बुला रही है। महाराज जी बोल रहे बृहद भागवतामृत में ऐसा लिखा। गरुड़ जी ने आके हनुमान जी को कहा, और हनुमान जी ने वहां पर इस बात को पूरी तरह से स्थापित किया कि श्रीनाथे जानकी नाथे। यद्यपि मैं ये जानता हूं भली प्रकार से श्रीनाथ अर्थात लक्ष्मीनाथ, राधानाथ, और दूसरी तरफ से जानकी नाथ, सीता जी के नाथ भगवान श्री रामचंद्र, ये दोनों एक ही हैं। श्रीनाथे जानकी नाथे दोनों ही एक हैं, किंतु तब भी मेरा चित्त जो है वो पूर्ण रूप में किसमें लगता है? भगवान श्री रामचंद्र में। यदि श्री कृष्ण चंद्र रामचंद्र के रूप में अपना दर्शन देके मेरी सेवा ग्रहण करेंगे, तब मैं अवश्य ही क्या करूंगा? उनके चरणों में उपस्थित होऊंगा। इसको गुरुदेव कहते थे, ये है अपने आराध्य देव के प्रति एक निष्ठा। हम लोग जो है, एक गुरुदेव ने नाम दिया कि तत्व के अनुसार, गुरुदेव का कोई और शब्द है किंतु मेरे को जो अभी स्मरण आता, भावना उसकी वही है कि तत्वता राम और कृष्ण एक होने पर भी हमारे जो आराध्य देव है उनकी तिथि आने पर हम पालन करते हैं, किंतु जो हमारे आराध्य देव हैं वो कौन है? ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। इसलिए भगवान राम के चरणों में अथवा भगवान नरसिंह के चरणों में, सभी के चरणों में, गुरुदेव मथुरा में बोलते थे द्वारिकाधीश मंदिर में जाओगे प्रणाम करना, द्वारिकाधीश को प्रार्थना करना कि हे प्रभु मेरे को राधा जी के चरण कमलों की सेवा ही प्रदान करना। तो इस प्रकार से भगवान राम जी के चरणों में भी यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी अपने आराध्य देव के प्रति, हनुमान जी के चरणों में भी यही प्रार्थना कि जैसे उनके अपने आराध्य देव के चरणों में एक निष्ठ होकर के एकांत की भक्ति है, उसी प्रकार से हमारी, जैसा कि हमारे पूर्व आचार्य श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा, अपि त्यक्त्वा लक्ष्मीपति रतिम, जो लक्ष्मीपति जी के प्रति भी रति जो है उसको भी नहीं रखना। एकमात्र ब्रजे राधा कृष्णा प्रचुर परिचर्या मिहा तनु। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, उनकी आराधना ब्रज की गोपियों के चरण अनुगत्य में, वही हम लोगों का सब समय जो है एक भावना रहे और वो दिन प्रतिदिन सुदृढ़ होती जाए, यही शिला गुरुपाद पद्म के चरणों में निवेदन है। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों ने कुछ कुछ कथा सुनाई और इस प्रकार इस घर में जो आए सभी प्रकार का मंगल वो भगवान का नाम और कथा और वैष्णव दर्शन से निश्चित रूप से प्राप्त होता ही है। यहाँ पर सभी देखो कितने बड़े बड़े भक्त आए और सबने कुछ कुछ कथा सुनाई, इससे बढ़कर और मंगल कुछ हो सकता है? मंगल भवन। और उसमें भी फिर संजय प्रभु जी ने हनुमान जी की बड़ी सुंदर महिमा वर्णन की, फिर प्रभु जी ने माधव पेपू ने भी, कि बिना हनुमान जी के, और देखो हनुमान जी जो 3 पुरुषोत्तम है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उसमें तो स्वयं हनुमान जी हर प्रकार से सेवा कर रहे हैं। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण लीला में भी कुरुक्षेत्र में रथ पर, जहाँ पर अर्जुन और कृष्ण विराजमान, वहां ऊपर पताका में श्री हनुमान जी विराजमान। सब प्रकार से
हाँ, स्वयं कृष्ण सारथी बन गए अर्जुन के, और हनुमान जी को भी ऊपर बिठा दिया। समय समय पर जब हो तो रथ नीचे दबा देना और यहाँ ऊपर उठा देना, तो वहां पर भी उनकी सेवा। और फिर प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में श्री मुरारी गुप्त, श्रील भक्ति ज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बतलाते थे ना, महाप्रभु जी कहते हैं मुरारी, राधा कृष्ण की आराधना सबसे इस प्रकार से संक्षेप में। और मुरारी गुप्त तो चिंता में पड़ गए और उन्होंने अपने तकिए के नीचे रख दिया क्या? कटारी रख दी। कटारी समझते हैं? जो गला काटते जिससे गन्ना काटते। हाँ गला, हाँ वो कटारी जिससे लोग आजकल गला ही काटते हैं, गला काटते हैं। और मीठी मीठी वचनों वाली कटारी से आजकल वो वाली कटारी का कोई काम निकल ही हो गया ना, महाप्रभु के भक्त हैं, इसलिए भाषा से ही काटो। तो विचार किया मैं अपने देह को त्याग दूंगा। देखो कैसी निष्ठा है। क्यों अपनी देह को त्याग दूंगा? बोलते एक तरफ तो मैं अपने आराध्य श्री सीताराम जी को छोड़ नहीं सकता, मैं तो उनके चरणों में बिक चुका हूं, मेरी कहीं और इतनी निष्ठा और श्रद्धा नहीं, इसलिए यहाँ कोई अपराध नहीं है, अपने आराध्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण है, पूर्ण रूप से। लेकिन दूसरी ओर श्री चैतन्य महाप्रभु जी का भी आदेश है, तो मैं तो बड़ी दुविधा में फंस गया, क्या करूं? अपने देह को ही मैं त्याग दूंगा। परंतु महाप्रभु जी तो सबके हृदय में विराजमान। महाप्रभु जी आए और कहेंगे मुरारी चिंता मत करो, तुम्हारी जहां निष्ठा जहां श्रद्धा, उसी निष्ठा में ही उसी प्रकार से अपने भाव के अनुसार अपने आराध्य की सेवा करते जाओ। इसलिए श्री महाप्रभु जी की लीला में भी वे श्री हनुमान जी का सर्वत्र हर जगह सब प्रकार से सेवा प्रवीण, सेवा ही जिनका धर्म है, सेवा ही धर्म है, बिना सेवा के नहीं। और उसी सेवा में ही परिपूर्ण रूप से ज्ञान भी है और परिपूर्ण रूप से वैराग्य भी है। सेवा को छोड़कर और जीवन में कुछ है ही नहीं। राम काज करवे को आतुर, राम काज करवे को आतुर, सब समय आतुर उतावले हैं। और गुरुजी तो कभी हिंदू मंदिरों में, सनातन धर्म मंदिरों में जब हनुमान जी की महिमा का गान करते तो बड़े हास्य रूप में कि किस प्रकार सीता जी को सिंदूर लगाते देखा, ये सब कथा मैं कह नहीं रहा, चुटकी वाली। और वो चुटकी वाली लीला, राम जी को सोने नहीं देते, चुटकी बजाते हैं। थोड़ा सा बस हिंट देके स्मरण करा रहा हूं, ऐसे गुरुजी महिमा गान करते थे। तो इसलिए उन श्री हनुमान जी के चरणों में हम भी यही प्रार्थना करते हैं, हमारी भी ऐसी अपने आराध्य जो हमने गुरुदेव से श्रवण किया, आराध्य भगवान ब्रजेश तद्धाम वृंदावनम, वो निष्ठा हमारी भी हो, वो निष्ठा हमारी भी हो। हरि गुरु वैष्णव तीनेर स्मरण, तीनों में ही निष्ठा हो, है ना। इससे बढ़कर और कोई मंगल हो सकता है? यहाँ पर इतने भक्त आए और कीर्तन कथा हुई है, कम से कम 10 बजे से चल रहा है कार्यक्रम। अभी यहीं पर विराम देते हैं। देखो ये साउथ अफ्रीका से आए, 22 घंटे की फ्लाइट, वो हॉलैंड के सारे लोग आए। आज सुबह तो आए बेचारे 7 बजे, सीधा स्नान करके यहाँ पहुंच गए। अभी सबके मुंह नीचे हो रहे हैं, नहीं तो कथा और भी चलती। थोड़ा सा भक्तों का भी ध्यान रखना पड़ता है, हमारा और भी आगे कार्यक्रम है, इसलिए कथा को यहीं पर रखकर हमारी माया माता जी और हमारे वर्मा प्रभु जी, उनकी सुपुत्री ईशा देवी दासी और नंदन नंदन प्रभु, और उनकी दूसरी सुपुत्री क्या नाम? रासेश्वरी दासी, और श्याम बिहारी दास, होने वाले श्याम बिहारी दास, इनका इन सभी को बहुत बहुत बधाई। और केशव तो हमारा है इसलिए इसका नाम नहीं लिया ये तो दान दे हुए वस्तु वापस ली नहीं जाती, ये तो अभी ब्रह्मचारी है। मोटी माता कह रहे मुंह से बोला मैंने अभी तक। हाँ, और इनके गोपाल जी का जन्मदिन है। अभी बस एक कीर्तन करके यहीं पर हम लोग समापन करते हैं, उसके बाद प्रसाद पाकर हम लोग हम आगे वाले कार्यक्रम के लिए उपस्थित होते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।